हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज क्लियर आ रही है बच्चे? यस मैम। यस। Okay, so let us start with the topic. So last class we are discussing the topic of chronic penny model, last part of chronic penny model, and that is where discuss the EK diagram. So first we discuss this figure. We discuss this figure, graph between these two, alpha and graph is not satisfied completely this equation. So those parts which are satisfying, those parts are known as the allowed branch, and which is not fulfilling the equation, that is known as the forbidden energy band. And on that basis, we draw this E and K diagram on the basis of this equation, that is E equals to K square H bar square by 2A. So we are showing that it is a set of the energy and wave vector diagram for this consists of a set of discontinued parabola. This equation is E and K का जो equation है, so this is resembling the equation of a parabola, and for this parabola we are getting a discontinuity at this point pi by a. Pi by a point पे energy में discontinuity आता है. That's why we are saying this is a continuity from 0 to pi by a. Accordingly, this side 0 to minus pi by a. 0 to pi by a, 0 to minus pi by a. This is we are getting parabola, and again pi by a से 2 pi by a, we are getting the allowed region, and this is also allowed region, and so on. Now इसे region जो आया, when you are indicating this region 0 से pi by a, 0 से pi by a, again pi by a से 2 pi by a, again this is pi by a से minus 2 pi by a. So this regions को अभी इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम देंगे, एंड एक जोन उसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जोन. ठीक है, सो दिस जोन को क्या नाम कहा जाता है? दिस आर गिवन बाय वन साइंटिस्ट ब्रिलोइन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्रिलोइन जोन्स. ठीक है, यही चीज को ही जो स्टार्ट हुआ, we have started that taking the periodic potential and the Kronig Penney model, and from that model we got one graph, and from one graph we got other graph, and उस graph के basis के now we are explaining this thing. ठीक है, so what are these जोन्स? जोन्स क्या है? सो पहले इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही चीज है ये. From EK diagram, we see that the electron have allowed energy values in the region or zone extending from minus pi by a to pi by a. That is the first allowed range. हम यहाँ पे दिखा रहे हैं on this above figure, that is from 0 से minus pi by a and 0 से plus pi by a. So this is the first allowed region. Again, second allowed region is second consists of two sets. Pi by a से 2 pi by a, again minus pi by a से minus 2 pi by a. Third region is minus 2 pi by a से minus 3 pi by a, and again here minus plus 2 pi by a से 3 pi by a. ठीक है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो दो ही करेंगे हम. अगर हम इस चीज को दिखाते हैं ब्रिलोइन जोन्स इन वन डायमेंशन, सो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? k इक्वल्स टू माइनस पाई बाई a टू k इक्वल्स टू प्लस पाई बाई a. सो वन डायमेंशन मतलब ओनली एक्स एक्सिस में हमने दिखा दिया. ठीक है, वन डायमेंशन में अगर हम फर्स्ट जोन दिखाएंगे, तो व्हाट इज दिस ब्रिलोइन जोन्स इन फर्स्ट जोन इन वन डायमेंशन? फर्स्ट जोन मतलब दिस इज फ्रॉम माइनस पाई बाई a टू प्लस पाई बाई a. दिस इज द ब्रिलोइन जोन इन one dimension, first Brillouin zone in one dimension. Second zone क्या होगा? This is minus pi by a से minus 2 pi by a, and here also pi by a से 2 pi by a. That is, this region is known as the second Brillouin zone. इसको हम दिखाएंगे क्या? This is the second Brillouin zone, and ये continuity में आता है कि जीरो के ये साइड में आता है. This is the first Brillouin zone, एक साथ दिखा दिया, and यहाँ पे पार्ट में दिखाया. That is, this is second Brillouin zone and this is second Brillouin zone in both sides. ठीक है, so this is the Brillouin zone in one dimension. Okay, अभी यहाँ पे actually ये
ये थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट है अभी यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल वे में हम समझ गए, पर टू डायमेंशन जब देखेंगे देन यहाँ पे क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोपागेट होता है वेव नेचर कंसिडर करके इस पॉइंट को कंसिडर किया जाता है बाय ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। सो इतना आपको जरूरत अभी नहीं है। सो इसको मैं खाली इसका फिगर दिखा के आपको बता दूंगी, अब जस्ट रिमेम्बर द फिगर, फिगर देख के आप इसको समझ जाओगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। सो जब हम टू डायमेंशन लेंगे, मतलब के के लिए टू डायमेंशन, मतलब के के लिए वी हैव टू शो टू डायमेंशन के एक्स एंड के वाई। के का ही दो एक्सेस, ई के डायग्राम इज डिफरेंट। नाउ ब्रिलॉइन जोन जो हम दिखाते हैं वेव वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रोपागेटिंग एज ए वेव, वेव वेक्टर जो के वो कैसे प्रोपागेट करती है, कहाँ कहाँ रीजन में प्रोपागेट करती है, उस हिसाब से ब्रिलॉइन जोन वी आर डिफाइनिंग। वी आर डिफाइनिंग द ब्रिलॉइन जोन ऑन दैट बेसिस, दैट इज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। फिर सेकंड जोन मतलब पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए प्लस और माइनस दोनों साइड में गए, फिर वहां पे है। सो ये चीज थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकली कैसे जाता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, उस चीज के फॉर्म में इसको ट्रीट किया गया है। सो हम वन डायमेंशन में क्या लिखते हैं, के इक्वल्स टू प्लस और माइनस n पाई बाई ए, एंड टू डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, दिस इज के एक्स एन वन प्लस के वाई एन टू इक्वल्स टू पाई बाई ए एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला उसी से आया है जो मैं आपको बता रही थी अभी। We are getting this formula from this Bragg reflection condition से, और कुछ कैलकुलेशन के बाद we are getting this formula. So this is kx n1 plus ky n2 equals to pi by a n1 square plus n2 square. ठीक है, अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें देख के फिर इसको करना पड़ेगा। So suppose हम कहेंगे फर्स्ट जोन, फर्स्ट जोन क्या होगा, फर्स्ट जोन में अभी क्या है, k का भी दो डायमेंशन आएगा, kx and ky. ठीक है, so n1 and n2 are made equal in turn so that plus or minus 1 or 0. So अगर हम यहाँ पे n1 का वैल्यू, यहाँ पे let us assume, let us take the value of n1 equals to plus or minus 1, n2 का वैल्यू 0 लेते हैं, देन ये क्या आएगा, अगर यहाँ पे n1 का वैल्यू 1 लेंगे, n2 का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 होगा। सो ये बन जाएगा kx equals to plus or minus pi by a। ये तो समझ सकते हो, ये तो एक फॉर्मूला, इसको याद रखना है, kx n1 plus ky n2 equals to plus or minus pi by a n1 square plus n2 square. So यहाँ पे हम बताएंगे, suppose n1 equals to plus or minus 1, so kx equals to plus or minus pi by a। n2 equals to क्या है, अगर ये n2 का वैल्यू plus or minus 1 लेंगे, n1 को 0 लेंगे, then kx term will vanish, and यहाँ पे भी first term will vanish, so second term ही बचेगा, that is ky n2, that is ky into 1 equals to प्लस और माइनस पाई बाई ए, एंड दिस इज ky इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाई ए। यहाँ पे समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे वन डायमेंशन में हमने क्या है, एक ही एक्सिस के का लेके दिखा दिया। अगर टू डायमेंशन लेंगे देन के का ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस दिखाया, ये के वाई एक्सिस पर ऐसे दिखाएगा। ठीक है, सो ऐसे आपका इक्वेशन बना, जैसे के एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाई ए, के वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाई ए। सो दिस एनक्लोजेस ए फिगर ऑफ स्क्वायर, एंड ये क्या करेगा, एक स्क्वायर फिगर में ही एनक्लोज होगा कि एक्स का, एंड इसको कहा जाता है फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। इसको देखते हैं ये कैसे दिखता है। अभी यहाँ पे देखो, सो दिस इज द के वाई एक्सिस एंड दिस इज द के एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे हमने ये पॉइंट क्या लिया, एक्स एक्सिस में दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई ए, दिस पॉइंट इज प्लस पाई बाई ए। एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर pi by a minus pi by a, this point is your plus pi by a and this point is plus pi by a. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है pi by a सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्क्वायर शेप में आएगी, क्योंकि ये जो एक इक्वेशन बनता है, इसमें इस इक्वेशन का जो kx एंड ky के फॉर्म में, दिस इज प्लस पाई बाई ए, दिस इज माइनस पाई बाई ए, एंड यहाँ पे एक रीजन हम एनक्लोज करेंगे एंड इस रीजन को ही कहेंगे दिस इज द फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड द रीजन एनक्लोजिंग दिस इज नोन एज द फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन इन टू डायमेंशन। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन एंड सेकंड ब्रिलॉइन जोन इन टू डायमेंशन। तो सेकंड जोन के लिए हम क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर
n1 equals to plus or minus 1 and n2 equals to plus or minus 1. n1 equals to plus or minus 1, n2 equals to plus or minus 1, पर n1 equals to, so equation क्या है, kx equals to n1, ky equals to kx n1 plus k2. अभी अगर हम यहाँ पे +1 पुट करेंगे दोनों केस में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज kx plus ky equals to 2 pi by a. अगर -1 पुट करेंगे देन वी आर गेटिंग, दिस इज, सारे कॉम्बिनेशन ले लेंगे, एक में +1 एक में माइनस n1 माइनस n2 प्लस देन n1 प्लस n2 माइनस n1 माइनस n2 माइनस, ठीक है. सो वी आर गेटिंग 4 इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द 4 values of this n1 and n2. इसका 2 वैल्यू, इसका 2 वैल्यू, तो 4 कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग. सो व्हाट वी गॉट, दिस इज kx plus ky equals to 2 pi by a minus kx plus ky equals to 2 pi by, depending on these values, and ये +1 ये -1, तो this is kx minus ky equals 2 pi by a and this is minus kx minus ky equals 2 pi by a. यहाँ पे xy दोनों आ गया, देन xy का कॉम्बिनेशन के साथ अभी इसको देखेंगे ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी आ जाएगा अकॉर्डिंगली. जो इक्वेशन जो होगा, सॉरी फिगर जो बनेगा, एरिया को हम क्या लेंगे. सो ये था क्या है, ऑन दिस x एक्सिस this value is your 0, this is minus pi by a, this is minus 2 pi by a, and this is plus pi by a, this is minus 2 pi by a. And similarly यहाँ पे क्या आया, on the y axis this is 0, this is plus pi by a, this is plus 2 pi by a, this is minus pi by a, this is plus 2 minus 2 pi by a. एंड यहाँ पे ये जो 4 लाइन बनेंगे, इस 4 लाइन को अगर हम बनाएंगे देन द लाइन विल बी लाइक दिस डिपेंडिंग ऑन इट्स स्लोप. सो यहाँ पे वेरी इजीली वी कैन याद रख सकते हैं, -2 pi by a, this is plus 2 pi by a, this is plus 2 pi by a, this is plus 2 pi by a, and this is minus 2 pi by a. And this region is known as the second Brillouin zone. So ये second Brillouin zone जब दिखाएंगे in 2 dimension में, so this is your Brillouin zone, this is also Brillouin zone, this is also Brillouin zone, this is also Brillouin zone. So these are the second Brillouin zone in 2 dimension. ठीक है. So यहाँ पे हमने फर्स्ट Brillouin zone दिखा दिया, यहाँ पे सेकंड Brillouin zone दिखा दिया इन 2 डायमेंशन में. एंड 1 डायमेंशन में तो बहुत इजी है, एक लाइन को ही 1 डायमेंशन में ओनली एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज फर्स्ट Brillouin zone, दिस इज सेकंड Brillouin zone. एंड जब 3 डायमेंशन हम दिखा नहीं सकते तो होगा तो हम उसको भी ऐसे क्यूबिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं, पर हम यहाँ पे इट इज नॉट, हम अभी दिखा नहीं सकते. सो ऐसे ऐसे डिफरेंट जोन्स को वी कैन locate on the basis of EK diagram. So these are your Brillouin zones 1 and 2 dimension. ठीक है, समझ में आया. ये फिगर को याद रख लेना, फर्स्ट वाला तो याद रखने के आपने अब हो जाएगा, सेकंड वाला के लिए फिगर याद रख लेना, तो उस बेसिस पे कर सकते हो इसको. MCQ में तो ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा, वरना ये जनरल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू ड्रॉ दिस Brillouin zone. Then we'll start with another topic, जिसको कहा जाता है, that is this concept of effective mass. ठीक है. So effective mass मतलब mass is subjected to be change. ठीक है. So हम when we are saying this is the electron is moving in a, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको starting से बताया था, that is this is a theory which is explaining the conductivity inside the material. So how this electron is conducting inside the material. So to explain this theory so that we can classify the materials according to their conductivity. So to explain this theory, what was considered, that this electron is moving in a periodic potential. हम क्या consider कर रहे हैं, that is this electron is moving in a periodic potential. And periodic potential मतलब electron is moving inside a lattice core. All the lattice cores are positive charge, electron is a negative charge particle. So the potential of the electron when it is moving inside the positive charge ion core, that will not remain constant, so it will be affected. And a regular interval में it will passing through the similar situations
जिसको हमने दिखाया एज द सीरीज ऑफ पोटेंशियल वेल, दैट इज एक सर्टेन पॉइंट पोटेंशियल इसका हम 0 माना एंड और एक अदर पॉइंट पोटेंशियल इसका मैक्सिमम दैट इज V0 हमने माना था एंड उसको ही लेके कंसिडर किया था। सो ये इफेक्टिव मास क्या कहता है, दैट इज कहां पे है, इट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द मास इज आल्सो वेरिंग, ठीक है। सो इस चीज को देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल are not completely free but interact with the periodic potential of the crystal lattice, that is electron जो हम यहाँ पे टोटल फ्री तो है नहीं, ये कहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द क्रिस्टल लैटिस रीजन। सो बिकॉज ऑफ दिस द behavior of electron towards the external force is different from that of a free electron। फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमने बहुत सारे अभी तक पढ़ के बहुत कुछ आए हैं। अभी क्या है, when an electron is moving inside a periodic lattice, inside a crystal lattice which is periodic in nature, then when external field, that is electric or magnetic field, is supplied to that electron inside the crystal lattice, so it will behave somewhat different that from the free electron। The deviation of electronic behavior can be taken into account by considering the इलेक्ट्रॉन टू हैव एन इफेक्टिव मास। सो ये इसका जो बिहेवियर स्टडी करके हम बताएंगे, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इसका मास भी वेरी करेगा एंड जिसको कहा जाता है इफेक्टिव मास। इट इज नॉट ए फ्री मास, इट इज नॉट ए फ्री मास, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका मास को हम इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते, बट मास भी डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट इज लाइंग, एंड दैट इज नोन एज द इफेक्टिव मास, ठीक है। सो हम इस चीज को हम देखते हैं, when an electron is moving in a periodic potential crystal lattice के अंदर, whatever electron is moving, it is moving in a periodic potential। So suppose it is electric field is applied to this crystal lattice, so this electron will be accelerated by an electric field or magnetic field। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लेके कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द पीरियोडिक पोटेंशियल, whenever you are applying any field, whether it is electric field and magnetic field, how it is reacting to its mass, मास के में क्या चेंजेस आता है, मास कैसे वेरी करता है, मास का वेरिएशन कैसे होता है, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव मास। सो यहाँ पे we'll study this problem, study this condition by taking an applied electric field, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेशन फिर स्टार्ट होगा। Let us consider the motion of an electron in a crystal is in the presence of an applied electric field E1। E1 यहाँ पे लिया है क्योंकि E बहुत बार यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पे इस चीज को क्या लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नाउ affected by electric field, that is electric field of amount E1 is acting on this electron which is moving inside the crystal lattice। So we know that what is the force acting on the electron if electric field E1 is allowed। अगर E1 अगर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एक्ट करेगा, तो फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा, F equals to QE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज E, so we can write F equals to Q into E1। फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इस चीज को नोट कर लो बच्चे, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, तो इसको स्टेप वाइज नोट करोगे तो ये बाद में ग्राफिकली समझ में आएगा। सो F इक्वल्स टू E1, ओके, ये तो लिखा। F क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E1, F इक्वल्स टू E1। सो लेट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए स्मॉल डिस्टेंस dx इन टाइम dt ड्यू टू दिस फील्ड, due to this force। force apply हुआ, force apply होने से क्या हुआ, the electron is being displaced because of this applied force F। so suppose it is displaced by a distance dx in time dt, so what is the work done because of this force, work done equals to energy gain in energy gain, okay, work done equals to that, what is the change in energy, that equals to DE, इसको नाम क्या दिया है DE, एंड फोर्स के हिसाब से कितना होता है वर्क डन, दैट इक्वल्स टू F डॉट ds FDX। सो दिस इज F का वैल्यू क्या है, F इक्वल्स टू E1 दैट इक्वल्स टू dx। सो हमने क्या बताया यहाँ पे,
F amount of force is displacing the electron by a distance dx in time dt. So what is the work done? Work done equals to force into displacement, and इसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द चेंज इन एनर्जी, दैट इक्वल्स टू डीई. डी इक्वल्स टू ई E1 dx. इक्वेशन 1 अभी हम ऐसे लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स टू पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इक्वल्स टू v, एंड इसको लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी के. ये कहाँ पे पढ़ा था? स्टार्टिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स वी डिस्कस that the velocity v equals to that group velocity equals to d omega by dk. ओके, ये तो याद होगा, माना याद रखोगे. ये एक्सप्रेशन तो v equals d omega by d, मैंने वहां पे बहुत पढ़ा था, सारे रिलेशन भी पढ़ा था, vp एंड vg में रिलेशन क्या है, सारी चीज हमने वहां पे we have studied these things there. Yes, someone send me attendance. So v equals to d omega by dk, that is d by dk of ओमेगा. ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, एंड हमें पता है ई क्या है? ई इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इक्वल्स टू एच ओमेगा बाई 2 पाई. एच ओमेगा बाई 2 पाई मतलब कितना होगा? ये तो समझ में आ रहा है. ई इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को हम क्या लिखते हैं? ओमेगा बाई 2 पाई, न्यू इक्वल्स टू ओमेगा, so न्यू को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई. so E equals to h न्यू, that equals to h ओमेगा बाई 2 पाई. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज d बाई डी के ऑफ E बाई एंड h बाई 2 पाई क्या होता है? h कट या h बार हम कहते हैं. so दिस को हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू h बार ओमेगा, दैट इज दिस इज h बार ओमेगा. E इक्वल्स टू h बार ओमेगा, तो ओमेगा क्या लिखेंगे? E बाई h बार. समझ में आ रहा है? ये मैं जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे ओमेगा को E बाई h बार कैसे लिखा हमने? क्योंकि E इक्वल्स टू h न्यू हमें पता है, एंड न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, इतना पता है, h बाई 2 पाई, एंड h बाई 2 पाई को हम लिखते हैं h बार, दैट इज h बार ओमेगा, और वी कैन राइट omega equals to E by h bar. So this is d omega by dk, that is d by dk of E by h bar, that equals to 1 by h bar de by dk. h bar तो constant है, Planck's constant by 2 pi, that is again a constant 1 by h bar de by dk लिख सकते हैं हम. ठीक है, एंड इसको उल्टा करके ऐसे भी लिख लिया 1 by h 1 by h bar d by dk, or we can write this is 2 pi by s d by dk. So if this is the velocity, and what is the acceleration? Acceleration कितना होगा? Acceleration होता है dv by dt. Acceleration होता है क्या? dv by dt, that is d by dt of v, dv by dt. v क्या है? v is ऊपर वाला expression, that is d by dt of this v, that is 1 by h bar d by de by dk, that equals to 2 pi by h d square e upon dk square dk by dt. इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंशियल में चेंज आया है. यहाँ पे d by dk था, यहाँ पे हमने क्या किया? d square e by dk square, एंड इसको कर दिया dk by dt. डिफरेंशियल का फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके लिखा, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. आ रहे समझ में? बताओ. Yes, ma'am. चले आगे. Okay. So we can see that is this is a equals to 2 pi by h d square e by dk square dk by dt. Okay. So work done कितना होगा? What will be the work done? de e1 dx जो है, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. dx क्या है? फॉर्म इसका चेंज करेंगे. v इक्वल्स टू dx by dt, और वी कैन राइट dx इक्वल्स टू v dt, और वी कैन राइट d इक्वल्स टू e1 v dt. ये यहाँ पे dx को हम क्या लिखेंगे? इन टर्म ऑफ v dt. e1 v dt. मैं पूरा स्लो में बता रही हूँ,
आप इसको नोट कर लो. So this is D capital E. This is the energy equals to E1 V dt. E1 V dt. इसके फॉर्म में पहले हमने इसको लिखा. ठीक है. So we can write DE equals to E1 V into dt. अभी V क्या है? अभी इसका फॉर्म क्यों चेंज किया? क्यों? अब ऊपर हमने इतना सारा जो काम किया है उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और क्या. So V क्या है? This is 1 by h bar d by dk और 2 pi by h d by dk. उसको यहाँ पे पुट कर लिया. This is dE equals to E1 2 pi by h d by dk into dt. Okay. और क्या लिखेंगे? यहाँ से we got the value of dk by dt. We can write this is dk by dt equals to E1. क्यों? यहाँ पे डिफरेंशियल को देखो dE by dk dt. इसको डिफरेंशियल को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे dt by dk. सो DE दोनों साइड से कैंसल आउट. सो हम dk by dt का वैल्यू निकालने के लिए इतना सब किया क्योंकि यहाँ पे a के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए. मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आया? dk by dt इक्वल्स टू E1 by h बार और E1 2 pi by h. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? अभी आगे चलते हैं. सो a क्या है? इस पे सही नहीं दिख रहा है. A equals to देखो this is 2 pi by h, this is d square e by dk square dk by dt. इतना था. dk by dt का वैल्यू कितना आया? E1 2 pi by h. इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगी? यहाँ पे क्या है? 2 pi by h वहां पे दिखने रहा है. 2 लाइन यहाँ से दिख लो फिर बाद में देखते हैं. 2 pi by h and this is E1 dk by dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन? दिस इज a इक्वल्स टू, ये देखो ये सब्स्टिट्यूट हुआ है जो यहाँ पे डल दिख रहा था, इक्वल्स टू E1 by h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर d स्क्वायर e अपॉन dk स्क्वायर टू द पावर -1. हम यहाँ पे क्या किया? ये जो इसको नीचे ले आए. ठीक है. इसको d स्क्वायर e by dk स्क्वायर को नीचे ले आए. दैट इक्वल्स टू -1 करके लेके आ गए एक अनदर फॉर्म में इसको हमें प्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. इसका फॉर्म कल चेंज करके लिखा है. सो देखो ऊपर था तो +1 में था, नीचे ले आएंगे तो क्या होगा? वही क्वांटिटी -1 में. और कोई चेंज नहीं. ये नहीं सोचना कि प्लस को माइनस कैसे लिख रहे. कोई क्वांटिटी x अगर नीचे में ऊपर x है देन ऊपर लिखेंगे, नीचे अगर उसको लेंगे x की पावर -1 वही आएगा. ठीक है. उसकी फॉर्म में ही लिखा है. फ्री इलेक्ट्रॉन A क्या होता है? न्यूटन फोर्स F इक्वल्स टू ma और यू कैन राइट A इक्वल्स टू F by m. ठीक है. यहाँ पे हमारी फोर्स क्या लिया है? E1 अपॉन m. फोर्स का वैल्यू E1 अपॉन m. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू E1 अपॉन m. अभी अगर वी कैन सी ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन कितना है? E1 by h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर d स्क्वायर e by dk स्क्वायर -1. एंड यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू E by m. यहाँ पे ऊपर क्या? E1, यहाँ पे भी E1. सो m क्या हो जाएगी? m विल बी इक्विवेलेंट टू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वांटिटी. देखो डेरिवेशन से तो a का वैल्यू ये आ गया एंड इसको हमने न्यूटन फोर्स के हिसाब से a इक्वल्स टू F by m, फोर्स इक्वल्स टू E by m अगर हम कंपेयर करेंगे देन जो मास आया दैट वैल्यू विल बी डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन. सो कितना आया? m इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर d स्क्वायर e by dk स्क्वायर टू द पावर -1. एंड इसको क्या लिखेंगे? m स्टार इक्वल्स टू h स्क्वायर by 4 pi स्क्वायर d स्क्वायर e by dk स्क्वायर टू द पावर -1. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव मास. अगर डेरिवेशन सपोज अभी आए ना आए, डेरिवेशन में अगर इफेक्टिव मास मतलब यहाँ तक डेरिवेशन है. ठीक है. मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ तक है. बट इसको समझने के लिए अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा जहां पे इसका डेरिवेशन में यहाँ तक कंप्लीट है हो जाएगा इसमें. अभी इस चीज को और थोड़ा सा इफेक्टिव मास क्या है इसको कैसे हम समझेंगे. लेट अस सी दिस थिंग. ये कहां से आएगा?
ये सब रिलेटेड है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, यही ग्राफ से आएगा। दिस इज द ई के ग्राफ, ई के डायग्राम से ही इस चीज को हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट रीजन के लिए ई के ग्राफ क्या है, दिस इज द ई के ग्राफ फॉर दिस रीजन। सो यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस ग्राफ में देखो ये क्या है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो स्लोप क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसे आएगा, स्लोप देखो स्लोप वेरी हो रहा है एवरी पॉइंट पे, ऐसे वेरी होते होते एक ऐसा पॉइंट P एंड Q ऑन द ग्राफ आएगा जहां से ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज करेगा, एंड दोस टू पॉइंट्स आर नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फ्रॉम दिस ई के ग्राफ दिस पॉइंट्स आर नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पहले इस ग्राफ में मार्क कर लिया हमने, खाली इतना ही समझो। फर्स्ट ग्राफ क्या है, ई के ग्राफ। ई के ग्राफ हमें पता है कैसे आता है, ई इक्वल्स टू पैराबोलिक वेरिएशन h bar square by 2m into k square. So this is the EK graph, we got this, ठीक है, we got this graph. Now हमें क्या है, इसमें d square e by dk square है। ये क्यों कर रहे हैं कि वो इफेक्टिव मास के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ डी बाई डी क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, एंड इसी ग्राफ से ही हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, तभी इस चीज को इंक्लूड करा रहे सो दैट हम इसका पोजीशन देख सकते हैं। इतना ध्यान रखो, ये ग्राफ इसमें थोड़ा सा समझ लो, ओके। सो दिस इज पी एंड क्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, ग्राफ इसका जो सबसे स्लोप मैक्सिमम है। अभी डीई बाई डी के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन था, डी बाई डी इक्वेशन भी हम कहीं पे आया था, कहाँ पे आया था, ऑन दिस इक्वेशन। v वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 2 पाई बाई एच डी बाई डी के। तो अगर हम स्लोप के फॉर्म में दिखेंगे, ई के डायग्राम से ई बाई डी के आ जाएगी, तो हम वेलोसिटी का ग्राफ भी हम बना सकते हैं। यू कैन सी, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ इज द वेलोसिटी ग्राफ। कैसे होगा ये बताओ, देखो ये पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में देखो ग्राफ का ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। सो यहां से यहां तक आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड अगर हम इस दोनों का स्लोप निकालेंगे, देन यू कैन सी यहां से फिर स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, देखो दिस इज ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड के वेक्टर, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड के वेक्टर। दैट इज हमें इसका ग्राफ बनाएगा, दिस इज द वी के ग्राफ वी आर ड्रॉइंग, v इक्वल्स टू 1 बाई h बार d बाई डी के। सो v कैसे आएगा, v इक्वल्स टू d बाई डी के। d बाई डी के कहां से आएगा, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ d बाई डी के। सो d बाई डी के का अगर हम इस पोर्शन को देखेंगे, ऑन दिस पोर्शन यू कैन से द ग्राफ विल बी लाइक दिस, एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे फिर ग्राफ का शेप फिर इसी शेप में आ जाएगा। यू कैन सी द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस ऑन दिस, ओके। थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ, आप देखना फिर से इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। v इक्वल्स टू दिस, अभी देखो सीधा हम m की ग्राफ में आते हैं। सो वेलोसिटी का ग्राफ d बाई डी के हिसाब से ऐसे आ गया। अभी m क्या है, m इक्वल्स टू ऊपर लिखा था डेरिवेशन से h बार स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर e बाई डी के स्क्वायर टू द पावर -1। दैट इज यहाँ पे d बाई डी के क्या है, ऊपर था, अभी यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस में है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं m स्टार इक्वल्स टू h बार स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर e बाई डी के स्क्वायर, ठीक है। सो अगर m एंड इसका वेरिएशन अभी देखते हैं, m एंड k का वेरिएशन देखते हैं, देन ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से यहाँ पे d बाई डी के, d स्क्वायर e बाई डी के स्क्वायर, मतलब ये जो लाइन आता है इसका स्लोप को भी स्टडी करेंगे। नाउ विल स्टडी द स्लोप। पहले क्या था, ये ग्राफ कैसे आया, e बाई के, मतलब वी हैव टू स्टडी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसका स्लोप अगर देखेंगे एट एनी पॉइंट, इसका अगर स्लोप निकालेंगे, देन या इस साइड में क्या है, पॉजिटिव है, ये साइड में नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव यहाँ पे था, यहाँ पे नेगेटिव था। सो d बाई डी के का वैल्यू अकॉर्डिंगली प्लस से लेकर माइनस ये लाइन पूरा आ रहा था। अगर हम ये वाला लाइन देखेंगे, सपोज यू ऑब्जर्व दिस लाइन, ये लाइन में क्या है, स्लोप क्या है, फॉर दिस लाइन स्लोप क्या है, प्लस या माइनस,
ये लाइन का देखो, ये लाइन नेगेटिव में था तो स्लोप इसमें नेगेटिव आ रहा था, ये साइड पॉजिटिव में था तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से अभी नाउ यू ओनली सी दिस थिंग, इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइन, फॉर दिस लाइन द स्लोप होता है दैट इज पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप है। सो इस रीजन में अगर मास को दिखाएंगे देन मास का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में इसका वैल्यू क्या है, स्लोप यहाँ पे, स्लोप ऑफ दिस लाइन एट दिस पॉइंट क्या है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे फिर 0 है, बट यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर दैट इज डीवी बाई डी के का जो वैल्यू है ये पॉइंट पे 0 हो रहा है, मतलब ये -1 पे तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सो एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, यहाँ से इंफिनिटी हो गया, यहाँ से फिर इंफिनिटी हो गया, एंड ये इंफिनिटी फिर जब इस पॉइंट से आते हैं फॉर दिस ग्राफ, यहाँ से ये ग्राफ एंड यहाँ पे जो पॉइंट आता है यहाँ पे क्या है, स्लोप फॉर दिस ग्राफ इज अगेन, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे फिर नेगेटिव स्लोप है। आप लाइन देख के समझ सकते हो इसका स्लोप जो होता है ये ऐसे ग्राफ में पॉजिटिव होता है, ऐसे ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आता है, ये इस साइड में है तो स्लोप नेगेटिव, ये भी जो था इस साइड में नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। सो इसका वैल्यू फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते होते फिर यहाँ पे आ जाएगा टिल -π/a, फिर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते होते यहाँ पे आ जाएगा स्लोप के हिसाब से, ठीक है, दैट इज +π/a तक इसका वैल्यू आ रहा है। सो यही डिनोट करता है दैट इज द अपर साइड ऑफ दिस MK ग्राफ shows the mass of electron in the conduction band, ये दिखा रहे हैं mass of electron in the conduction band, एंड ये क्या दिखा है, दिस इज mass of electron in the वैलेंस बैंड, ठीक है। इन द कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, आपका जो एनर्जी हम दिखाते हैं, जैसे ये कंडक्शन बैंड एनर्जी ऊपर का कितना है, इनफाइनाइट, नीचे क्या है, वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड में हम दिखाते हैं दैट इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी, ठीक है, नीचे तरफ मतलब ये थोड़ा सा -इन्फिनिटी दिखा रहा है। So upper side of MK graph shows the mass of electron in the conduction band representing its energy inside the conduction band, EC equals to -infinity, and between पूरा अगर होल रेंज देंगे then it varies between -infinity to +infinity. So hence M tends to infinity and this shows the mass of hole in the valence band. मतलब जो ऊपर साइड होता है ये देखो, ऊपर साइड क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड आपको फिगर याद होगा, अगर हम दिखा दें सेमीकंडक्टर की केस में वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड इसके ऊपर है। सो दिस इज EC एंड EV एंड फार्मूला लेवल इसके बीच में लाई करता है, उसमें भी अभी आएंगे, नेक्स्ट क्लास में उससे आएंगे। देन कंडक्शन बैंड में एनर्जी जो स्टार्ट होता है फर्स्ट एनर्जी यहाँ से, सो बैंड मतलब रेंज इसका बहुत ज्यादा होता है, अपर वैल्यू क्या है पता नहीं, उसको हम ले लिया इन्फिनिटी। बैलेंस बैंड में भी ऐसे एनर्जी हम क्या कहते हैं, दैट इज इतना एनर्जी आने से कंडक्शन बैंड में जाता है, तो बैलेंस बैंड में एनर्जी का हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी होता है। सो एक्चुअली ये जो ग्राफ आता है ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड एंड इसमें दिखाता है कंडक्शन बैंड। अकॉर्डिंगली यही वाला ही चीज है, ये कर्व में आया, इसी को हम बताते हैं पोजीशन ऑफ द होल। जो आता है होल को जब मास होता है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं एंड इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं इन द कंडक्शन बैंड। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन उसको ही इंडिकेट करने के लिए इफेक्टिव मास का हम यस बच्चे, इसमें कुछ ये जो टॉपिक अभी पढ़ा समझ में कुछ आया नहीं आया, बताओ। टॉपिक तो थोड़ा सा इफेक्टिव मास गलत, इट नॉट मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर इसका ग्राफ समझना भी आसान नहीं है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। किसी को समझ में आया, योगेश समझ में आया, मुदित, हर्ष समझ में आया कुछ? या नहीं है बोलो, नहीं भी आया तो बोल दो, कोई आता है। ओके चलो
बच्चे तो नहीं, अब टाइम भी हो गया, लेट अस एंड द मीटिंग नाउ।